गवैया छंद न्याय करन की बात सुनावे गुर नंदन सुन दे कर कान घंटा सिर पर लरकत निस दिन रह बाजार में रजू महान एक दिन जल पखार को लादे ब्रिखब अगारी करत प्यान जलदानी ते पीछे हांकत चलत चलत आए तिस थान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमर कर नाम दयावे ताए सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सतगुरां जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब विखे चवर छतर तखत दे मालक शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर पिछले पहर दे सजे हुए सुंदर सचखंड दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे योग हो जो आप जी निता प्रत गुर चरणा दे विच जुड़ करके रबी बाणी दे शब्द कीर्तन गुर इतिहास दी विचार नूं सरवण करके आत्मिक लाहा प्राप्त करदे हो। गुरु घर दे कीर्तनियां पासों आप जी ने रबी बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कीते हन। उपरंत समा बनया है चल रही लड़ीवार गुर इतिहास दी विचार दा। वो लड़ीवार कथा आप जी सरवण कर रहे हो। कल दे प्रकरण अंदर आप जी ने सरवण कीता कि पिरथी चंद जदों जहांगीर बादशाह नूं मिलिया अपना हाल दस्या ते जहांगीर बादशाह जी ने वो गल याद करके कि गुरु रामदास पातशाह जी दी सेवा करके गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरता गद्दी प्राप्त की है। उन्हें भी समझाउण दा यतन किया कि तू वड्डियां दी सेवा नहीं की इस करके तू ये गुरियाई प्राप्त नहीं कर सकिया। गुरु अर्जन देव जी ने सेवा करके गुरु पिता नूं खुश करके गुरियाई जिहड़ी है प्राप्त की है। इस करके तू ईरखा ना कर, उन्हां नाल हिरदे अंदर हीरका ना रख ते उन्हां कोल पहुंच के उन्हां दे चरणां विच जा करके अपने मन नूं निमर करके ते उन्हां कोल रह के अपना गुजारा कर। बहुत समझाउण दा यतन कीता पर नहीं समझदा। सुलही खान नाल मिलाप करके दो एहलकारां नूं रिश्वत दे के हुण बादशाह कोलों कोई मान सन्मान लेना चाहुंदा है। आओ इथों अगलेरे प्रकरण नाल जुड़न वास्ते मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई रसना दी कल्याण हित आखना करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਨਿਆਉ ਕਰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੇ, ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਸੁਨਦੇ ਕਰ ਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ 300 ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਘੰਟਾ ਸਿਰ ਪਰ ਲਰਕਤ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਰਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਰਜੂ ਮਹਾਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਕਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲੰਬੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲ ਪਖਾਰ ਕੋ ਲਾਦੇ, ਬ੍ਰਿਖਬ ਅਗਾਰੀ ਕਰਤ ਪਿਆਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਮੇ ਸਨ, ਜਲ ਦੇ ਖੂਹ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਸ਼ਕਾਂ, ਚੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਲਦਾਨੀ ਤੈ ਪੀਛੇ ਹਾਂਕਤ, ਚਲਤ ਚਲਤ ਆਏ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬ੍ਰਿਖਬ ਚਰਨ ਸੋ ਰੱਜੂ ਲਾਗੀ, ਐਂਚੀ ਗਈ ਸੋ ਘੰਟਾ ਹਾਲ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਚੁਰਾਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਾਜਤ ਨਾਦ ਪਇਓ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਹਜਰਤ ਬੈਠੇ ਉਤਰੇ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕਯੋ ਲਿਓ ਸੁਧ, ਤੋਰੇ ਮਾਨਵ ਗਨ ਤਤਕਾਲ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ,
कोई मनुख दो भेज के तुरंत वेखदा सी कि जाओ देखो किन्ने घंटी खड़काई है। हुण बादशाह जहांगीर ने आवाज सुनी, जदों आवाज सुनी ते सुनदियां सार दो सिपाही बुला के कहन लगा कि जाओ खबर लवो कि किन्ने घंटी वजाई है। ते सुन के बादशाह दा हुक्म दो जिहड़े मनुख सन दे सिपाही वो उसे वेले तुरंत चल के गए। खोजन लगे बिलो के उन्हें सो इत उत बूजत पे नर जाल। हुण उत्थे जाके सिपाही जिहड़े सन ओ भाल करन लगे कि घंटी किन्ने वजाई है, रस्सी किन्ने खिंची है। वो तां बलद दे पैर विच आई, बलद खिंच के अगे चले गए। हुण उत्थे कोई मनुख नजर नहीं आया। इधर उधर भाल कीती, कुछ मनुखां तो इधरों उधरों फिर के पुछना कीता। एक ने कहो बृख पग लागे ओ रज्जू चल कंटा ठणकार। ते फिर एक मनुख उत्थे नजदीक जिसने वेखिया सी कि बलद दे पैर दे विच आके रस्सी खिंची गई है, उन्हें दसिया सिपाहियां नूं कहन लगा कि इस रस्सी नूं किसी आदमी ने नहीं खिंचिया, ये बलद दे पैर दे विच आउण करके रस्सी खिंची गई है जिहदे नाल घंटी वजी है। सुन हजरत को सुध कर दीनस ने किस नर ने कीन पुकार। ये सुन के सिपाही बादशाह दे कोल वापस गए। वापस जाके सारी खबर देती, कहन लगे कि किसी मनुख ने वो घंटी नहीं बजाई, किसी ने कोई पुकार नहीं की। जलदानी के बैल चरण लग हाल गयो उठ नाद उदार। वो ता जलदानी कहंदे ने माशकी नूं, कहंदे माशकी बलदां ते मशकां पानी दियां भर के रख के जा रहे सन। वो बलदां दे पैर दे विच रस्सी आउण करके वो रस्सी खिंची गई है ते जिहदे नाल बहुत ज्यादा घंटी दी आवाज पैदा हुई है। जथा जोग तुम प्रजा बसे सुख निबल सबल सब होए एक सार। ते हे बादशाह तुहाडी प्रजा सारी एक सार सुख नाल वस रही है। कोई तगड़ा है कोई माड़ा है, भावें किसी भी तरह का कोई मनुख है, कोई भी दुखी नहीं, किसी ने दुखी होके घंटी नहीं वजाई। सारे एक सार सुख दे नाल नगरी दे विच वस रहे हन। जहांगीर ने पुने पठाए आनो बृखब लदियो तिस भांत। कहन लगा बादशाह सुन के कहन लगा जाओ तुरंत ही जाओ। वो जिहड़े बलदां दे उत्ते मशकां पानी दियां लदियां होईयां ने, वो उसे तरह पानी दियां मशकां दे नाल लदे होए जिहड़े बलद ने उन्हां नूं तुरंत मेरे कोल लैके आओ। जिम गमनत पग रजू ऐ चली दुखद पुकार करी जिम पात। जिहड़ी बलद दे पैर दे विच आउण नाल रस्सी खिंची गई है वो एवें नहीं खिंची गई, बलद नूं जरूर कोई दुख होवेगा। वो बलद ने दुखी होके रस्सी खिंची होवेगी, एवें कोई रस्सी नहीं खिंचदा। बलद जरूर किसी कारण दुखी होवेगा, दुखी होए ने अपनी पुकार कीती है। बिन दुख मम कंटा ना हिलावत करो न्याओ ते पिख बिरतात। बिन किसे दुख दे कोई भी घंटी नूं नहीं हिलाउंदा, बिना दुख दे कोई भी रस्सी नहीं खिंचदा। ये तां हुण तुसी जाओ बलदां नूं लैके आओ, मैं सारा बृतांत सारा हाल वेखांगा, फिर ही मैं न्याय करांगा। मत बिस्मत नर गए दौर कर जहां बैल अर्थो जल दात। जदों बादशाह ने ये गल कही ते बादशाह दी ये गल सुन के सारे बड़े हैरान होए। ते हुण हैरान होए उसे वक्त बादशाह दा हुक्म पाके दो सिपाही दौड़ के गए जिथे वो बैल पहुंचे सन ते बैल दे नाल जिहड़े माशकी पिछे तुरे जा रहे सन उन्हां नूं जाके कहना कीता कि तुहानूं बादशाह ने बुलाया है। तिसी रीत सो बृखब लदायो हांके पाछे गमनियो सोए। बादशाह ने कहा
कि माशकियां नूं कहो कि मशकां पानी दियां लदियां होईयां उसी तरह बलद मेरे कोल लैके आओ ते तुसी साडे नाल चलना करो। हुण माशकियां ने सिपाहियां दा हुक्म सुनिया, बादशाह दा हुक्म सुनिया, सुन के उसे तरह बलदां नूं वापस मोड़िया ते उन्हां दे पिछे उन्हां नूं हिकदे होए सिपाहियां दे मगर तुरे जा रहे हन। आनियो पातशाह जा बैठे हो, सभा लगी देखत सब कोए। हुण जिथे बादशाह बैठा सी, बादशाह दी सभा लगी हुई सी ते सारे बड़े हैरान भी सन। हैरान होके वेख रहे सन कि बादशाह हुण पशुआं दा की न्याय करेगा। सभा दे विच उत्थे पहुंच गए जिथे सभा लगी हुई सी, जिथे सारे बड़े हैरानी नाल बैठे वेख रहे सन। हजरत कयो बैल को हक है, लई उठाए पखाले दोए। हुण जदों माशकी बलदां नूं लैके सभा विच पहुंचे ते बादशाह ने की देखिया कि तिन तिन मशकां पानी दियां भरियां होईयां एक एक बलद दे उपर लदियां होईयां सन। तिन मशकां पानी दियां भर के एक बलद दे उपर लदियां होईयां सन। बादशाह वेख के कहन लगा कि एक बलद दे उत्ते दो मशकां लदनियां बनदियां ने, यह हक है बलद दा कि वह दो मशकां पानी दियां भर के लिजा सकदा है, पर तुसी तां तिन मशकां पानी दियां भर के उहदे उपर रखियां होईयां ने, पर बलद दा हक दो मशकां पानी दियां लैके जाण दा है। और तीसरी लादन की नस, ए अन्याय इसी संग होए। भारी सभा विच बादशाह कहन लगा माशकियां नूं, कहंदा तुसी बहुत वड्डा अन्याय कर रहे हो इन्हां बेजुबाने बलदां दे नाल। इन्हां दा हक दो मशकां लेके जाण दा है, पर तुसी इन्हां ते तिन मशकां लद के पानी दियां भरियां होईयां इन्हां दे नाल तुसी अन्याय कर रहे हो। या ते मम घंटा ठणकारे हो, होए दुखी इमकीन पुकार। कहन लगे एवें नहीं घंटी वजाई बलदां ने, ये बेचारे दुखी सन, तुसी भार बहुता ज्यादा लदे है, जिन्ना उन्हां दा हक बनदा उस तो ज्यादा भार लदे है। दुखी होके उन्हां ने पुकार कीती है, मेरी घंटी नूं खड़काया है। अब ते आगे सबन ब्रिखबन को, ला दो दोए पखाले पार। कहन लगा बादशाह कि अज तां मैं तुहानू छड़ देना, पर अगे तो दो मशकां पानी दियां भर के ही तुसी बलदां दे उपर लदनियां ने। पिछली गलती मैं तुहाडी मुआफ कर देना, पर अगे तो तुसी दो मशकां पानी दियां एक बलद दे उपर लदनियां हन, रखनियां हन। और तीसरी धरे जे ऊपर, हो गुनाई कैद मजार। ते अज तो बाद जे तुसी तीसरी मशक पानी दी भर के बलद दे उपर रखी तां तुसी गुनाहगार होवोगे ते तुहानू कैद विच बंद कर दिता जावेगा, तुहाडी दोबारा गलती मुआफ नहीं की जावेगी। तीजी मशक जे पानी दी भर के रखोगे ते गुनाहगार जान के तुहानू कैद विच पा दिता जावेगा, बंद कर दिता जावेगा। सब हिन को इम सुध कर दीजै, शाह कीन तब हुक्म उचार। बादशाह ने उसे वेले उसे दिन तो हुक्म कर दिता कि सारे माशकियां नू कह देवो कि बादशाह दा हुक्म है कि अज तो बाद किसी भी बलद दे उपर दो मशकां तो वध पानी दियां मशकां भर के नहीं लदनियां। जे लदेगा गुनाहगार जान के कैद विच पा दिता जावेगा। ये बादशाह दा हुक्म सारे माशकियां नू सुना दिता जावे। बड़ धर्म अग्ञे न्याओ जै पशुअन, मानुख की तो क्या है बात। कहन लगे पिरथी चंद बादशाह बड़ा धर्मी है, वो तो पशुआं दा न्याय करदा है, बड़ी सोच विचार करके वो तो पशु नाल धक्का नहीं होण दिंदा। पशु दा उन्हें इस तरह न्याय कीता ते मनुखां दी तां गल ही की करिए। जे मनुख दे न्याय दी गल करिए ते बड़ी डूंगी सोच विचार के वो न्याय करदा है। इस करके मनुख दे न्याय दी गल तैनूं कित्थों तक दसीए। हिम सुन पृथ्या दुखत पयो और
गुरता आस त्याग पछतात। ते हुण पिरथी चंद सुन के बड़ा दुखी होया कि बादशाह बड़ा बरीकी विच जाके न्याय करदा है, ते पता सी कि मैं तां कारी छल कपट रिहा, इहदे विच सच्चाई वाली गल ही नहीं। हुण बड़ा दुखी होया सुन के, ते गुरता गद्दी दी आस मन विचों त्याग के पछताउण लगा। इस टिक जतन होए न सकियत, मत सूखम निरने अवदात। ते मन विच विचारदा है कि इहदे कोल हुण कोई भी जतन सफल नहीं होना बादशाह दे कोल, क्योंकि बादशाह बड़ा सूखम बरीक मत वाला है ते बड़ा साफ न्याय करन वाला है। इस करके इत्थे मेरी चलाकी नहीं चलनी, इत्थे मेरा कीता होया जतन कोई सफल नहीं होना। तो ग्राम दे आदर ठाने, इसमें पी मम पत रह जात। ते हुण मन विच विचारदा है पिरथी चंद कि हुण चतुर चलाकी नाल इत्थे गल बन नहीं सकदी, ते गुरता गद्दी दी आस मैनूं हुण मन विचों कढ ही देनी चाहिदी है। जिस हिसाब नाल मैं सुन लिया कि बादशाह इस तरह न्याय करदा है, उत्थे ये गल नहीं बनेगी। ते हुण जेकर बादशाह खुश हो के मैनूं एक पिंड देना मन लवे, एक नगर दे देवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ले रिश्वत हजरत डिग गम ने, सुलई अपने संग मिलाए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੀ ਆਪਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। कह कर पृथ्या निकट हकारे, लगे तारीफ करन समुदाय। ते बादशाह दे कोल पहुंच के इन्हां अहलकारां ने बादशाह नूं कह के पिरथी चंद नूं भी अपने कोल बुला लिया ते बादशाह दे कोल बुला के पिरथी चंद दी सिफत करन लगे। बादशाह दे कोल प्रथम पाए श्री नानक इनके, हिंदू तुरत मुरीद बनाए। बादशाह नूं कहन लगे कि बादशाह, इन्हां दे पहले गुरु होए हन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी, जिन्हां जिहड़े बड़े महान गुरु होए ने, जिन्हां ने हिंदुआं नूं भी ते मुसलमानां नूं भी अपना मुरीद बना लिया सी। रामदास गुर तिन गादी पर बैठे, सुजस जगत पर छाए। हुण उन्हां दी गुरता गद्दी ते धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी बैठे हुए सन, ते जिन्हां दा सुजस जिहड़ा सारे जगत दे विच पसरिया होया है। गुर कर सागर समसर डर हर, पृथ्वी चंद पा चंद मनिंद। कहन लगे बादशाह, जमा दे डर तो बचाउण वाला गुरु दा घर समुंदर दे समान है, ते जिस घर दे विच पृथ्वी चंद चंद्रमा दे समान चमक रहा है। देश विदेशन के नर माने, सीस निवाए चरण अरबिंद। ते देश विदेश तो संगतां चल के आउंदियां ने, पिरथी चंद दे कोल आके दी पूजा करदियां ने, सीस नवाउंदियां हन ते इहदा सुजस करदियां हन। अजमत कर तिन होत सहायत, सुजस बिलंद करे नर बृंद। ते अजमतां दे सहत पिरथी चंद होण करके इहदे कोल करामातां ने, ते करामातां होण करके लोकां दी सहायता करदा जिहड़े इहदे कोल आउंदे ने। ते इस करके बहुत सारे मनुख जिहड़े ने बेअंत गिणती दे विच इहदा सुजस करदे ने, इहदी महिमा दा गुणगान करदे हन। श्री नानक की जोत इनो मोह, जानी परे गुने बख्शिंद। कहन लगे धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दी जोत जिहड़ी गुनाहां नूं बख्शण वाली है, वो पिरथी चंद दे विच टिकी हुई जानो। सन्मानत पातशाह रहे सब,
ए चल कर आयो तुम द्वार। हुण रिश्वत लई हुई सी, बड़ा सुजस करन लगे पिरथी चंद दा, बड़ी वडियाई बड़ा गुण गायन कीता बादशाह दे कोल। कहन लगी बादशाह जिन्ने पहले बादशाह होए ने सारे बादशाह ने हमेशा गुरु घर दा सत्कार कीता है, गुरु घर दा सन्मान कीता है, ते ए पिरथी चंद भी उस गुरु घर दे विचों चल के आया है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਿਆਉ ਨਿਬੇਰਨ ਕੀ ਜੈ ਨੀਕੇ ਕਰੋ ਵਿਦਾ ਦੇ ਕਰ ਉਪਹਾਰ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। नाए तमै मां इस घट जावे सिख तजे ने करे जोहार। ते बादशाह जेकर तुसी इहदा न्याय ना कीता, इहदा कोई सन्मान तुहाडे वल्लों ना होया तां इह सिख जिन्ने भी ने इह पिरथी चंद दा त्याग कर देणगे। इहनूं किसे ने मूंह नहीं लाउणा, ना इहदे नेड़े किसे ने आउणा ते ना इहनूं किसे ने नमस्कार करनी है, सारे ही इहनूं त्याग देणगे। ए पी पुन आप के घर को करे खुदाए बंदगी चार। ते बादशाह ये तुहाडे घर दा वड्डा पुण्य होवेगा जे तुसी इहदे कोई इहनूं कोई तोहफा दे दिओगे, इहदा मान सन्मान करोगे ते बादशाह तुहाडे घर दा वड्डा पुण्य होवेगा ते तुहाडे घर दे विचों तोहफा लैके हमेशा ही तुहाडे घर दे लई सुचेत होके बंदगी करेगा। जथा जोग बैठावन करिए मानव लाखों माने याहे। ते जथा जोग जाणदियां होया पिरथी चंद नूं गुरता गद्दी ते बिठा दिओ ते जिहदे लखां लोक आके दा मान सन्मान करन, इहदे कुल भेटावां आदਿਕ अर्पण करन। परंपरा ए गुर के घर की निश्चल राखो मिटे जो नाए। हे बादशाह गुरु घर दी ये जिहड़ी परंपरा चली आ रही है, जिहड़ी गुरु घर दी ये मर्यादा चली आ रही है, ये मर्यादा नूं उसे तरह कायम रखो, किते किसी तरह दे नाल भी ये मर्यादा जिहड़ी है इहदे विच कोई कमी ना आवे, मर्यादा दे विच कोई फर्क ना पवे। रावर की कीरत जग बिथरे अदक पला होवे दरगाहे। ते बादशाह इस तरह करन दे नाल जे तुसी पिरथी चंद दा मान सन्मान सत्कार करोगे, गुरु दा घर जाणदे आ ते इहदे नाल तुहाडे घर दी महान वडियाई संसार विच होवेगी ते अगे दरगाह दे विच भी आप जी दा भला होवेगा। जहांगीर ने सुन पहचानी रिश्वत लई इनो इस पाहे। ते हुण जहांगीर बादशाह जिहड़ा बड़ा परवीन सी, जिहड़ा इन्ना फैसला पशुआं दे भी फैसला करदा है, उन्हें जान लिया कि ये जिहड़े एहलकार हुण पिरथी चंद दी बड़ी बढ़ा चढ़ा के उपमा कर रहे ने ना, कहंदे इन्हां ने रिश्वत लै ली है पिरथी चंद तो, पिरथी चंद तो रिश्वत लैके एदी इस तरह सिफत कर रहे ने। प्रथम न पृथ्वी की कुछ पाखी आज लगी इन हो इस पाए। कहन लगा पहला तां इन्हां कदी पिरथी चंद दी कोई गल नहीं कीती, अज अचानक किवें आके पिरथी चंद दीयां सिफतां करन लग पए ने। अज अचानक इत्थां किवें इन्हां नूं पिरथी चंद दी याद आ गई, अगे ते कदी कोई गल नहीं छेड़ी इन्हां ने पिरथी चंद बारे, कोई उहनूं याद नहीं कीता। ये रिश्वत दा काम है, रिश्वत लैके ये जिहड़ी सिफत इस तरह दे नाल पिरथी चंद दी मेरे कोल कर रहे ने। दे कर दरब बिगारत लोकन भरियो खुटाई संग कुटंग। कहन लगे पिरथी चंद इस तरह रिश्वत दे के लोकां नूं विगाड़दा है, ये कुटंगा कपट दा भरिया होया है, क्योंकि रिश्वत दे नाल जिहड़े रिश्वत लैण वाले लोक ने वो झूठ नूं भी सच दे विच बदलण दा यतन करदे ने।
रिश्वत का बड़ा बोल बाला है, माया बड़ी प्यारी लगती है। एक बारी एक सेठ सी, वो कला ही सी ते बड़ा धनी सी, बड़ा धन सी ओदे कोल। ते ओनू आदत सी, ओदा एक सुभाव सी कि रात नू सौंदे समय वो दुध जरूर पींदा सी। 1 किलो दुध उन्हें गर्म करके पीना। ते समा क्योंकि होर परिवार ओदा है नहीं सी, इकल्ला ही सी, धन ओदे कोल बहुत सी। उन्हें सोचिया कि मैं एवें अग दे विच हथ फूकदा रहना, धन काहदे लई है, एक नौकर रख लेने आ, दुध गर्म करके दवेगा, आपां आनंद नाल छकिया करांगे। उन्हें एक नौकर रख लिया। नौकर रखिया, नौकर ने हुण हर रोज दुध गर्म करके देना ते सेठ ने बड़े आनंद नाल छकना ते सौ जाना। कुछ दिन वधिया चलदा रहा, सेठ बड़ा आनंद विच बड़ा खुश। वो जिहड़ा नौकर रखिया सी वो सोचन लगा कि सेठ ने भलवानी करनी है, ने पहलवान बनना है, कल्ला ही किलो दुध पी जांदा है, जे पाइया मैं भी पी लांगा ते किहड़ा फर्क पैन लगा। उन्हें पाइया विचों कढ के आप पी लेना ते पाइया पानी विच पा देना, किलो पूरा करके सेठ नूं पिया देना। 1-2 दिन पीता, सेठ कहन लगा कि पहला तां दुध बहुत वधिया हुंदा सी, लगदा है जिहड़ा नौकर है हेरा फेरी करन लग पिया। उन्हें ओदे उत्ते एक होर नौकर रख दिता। जदों ओ रखिया ते 2 दिन फिर दुध वधिया गया ते जिहड़ा पहला सी वो कहन लगा कि चंगा भला मैं पाइया दुध पी लेना सा, इन्हें किहड़ा हुण भलवानी करनी है, ते जे पाइया पाइया दोवें मिल के पी लीए, 1/2 किलो पानी पा दिए, सेठ नूं किहड़ा पता चलना है। हुण पाइया पाइया दोवें पीन लगे, रह गया दुध 1/2 किलो ते 1/2 किलो पानी मिला देना विच, गर्म करके सेठ नूं दे देना। सेठ कहन लगा ये दोवें मिल गए। हुण उन्हां ते एक इंस्पैक्टर रख दिता उन्हां दी चैकिंग वास्ते। ते पहले दिन जदों इंस्पैक्टर आया ते वो आके कहन लगा भी किवें करदे हो हर रोज, पुछया। कहन लगे जी करदे तां इदां भी पाइया पाइया दोवें पी लैने आ, 1/2 किलो पानी पा के सेठ नूं पूरा करके दे देने आ। कहंदा अज किलो ही गर्म करो, किलो सारा आपां ही पीआंगे। कहंदा सेठ नूं, कहंदा उन्हें मैनू पुछना है ना, इंस्पैक्टर मैं रखिया, उन्हें मैनू पुछना है, तुसी की लेना सेठ तो, करो किलो गर्म दुध। वो कीता ते उन्होंने पी लिया 3 जणियां ने। सेठ डिकी जावे भी अज दुध नहीं आया, इंस्पैक्टर भी चंगा इंस्पैक्टर रखिया, अज तां दुध मिलिया ही नहीं, अगे तां चल 1/2 किलो पानी पा के दे दिंदे सन। हुण जदों दुध ना पहुंचिया, सेठ विचारा हार गया, थक के सौ गया, नींद आई। ते हुण जदों दुध नूं गर्म करदे आ ते आपां वेखदे आ दुध थल्ले लग जांदा है। वो पतीले दे विचों इंस्पैक्टर ने की कीता कि सेठ दीयां मुछां रखियां होईयां सन, वो मलाई जी उतारी ते सेठ दीयां मुछां नूं ला दित्ती सुत्ते पैदियां। ते सवेरे सेठ जागया, उन्हें इंस्पैक्टर नूं बुला लिया, कहंदा आ जा बई, तैनूं काहदे लई रखिया है, तू तां पहले दिन ही आया, दुध नहीं मिलिया मैनूं। कहंदा तुसीं दुध पीता नहीं? कहंदा मैं तुहानूं पिया के गया। कहंदा कमाल हो गई, दुध तां मैं पीता ही नहीं, दुध आया ही नहीं, तू मैनूं दुध कित्थों पिया दिता? ते शीशा अगे करके कहंदा सेठ जी मुछां तां तुहाडीआं मलाई नाल लिबड़ियां, तुसीं कहंदे दुध पीता नहीं। सो भाव कहण दा कि जिन्हों रिश्वत की आदत पै जाए वो कुछ भी कर सकता है। ते हुण इन्हां ने जाके बादशाह कोलों बड़ियां सिफतां कीतियां ते बादशाह बड़ा प्रवीण सी, सियाणा सी, उन्हें जान लिया कि इन्हां ने रिश्वत लै लई है। ते नाल ही प्रिथी चंद दे बाबत जानिया कि ये रिश्वत दे के लोकां नूं विगाड़दा है ते कपट ते छल दा भरिया होया है। गुरता को अधिकार न इसको, ज्ञान आद गुण न शुभ अंग। कहन लगे कि गुरता गद्दी दे लायक नहीं प्रिथी चंद, जान लिया सी, पहले दिन ही वेख लिया सी इहदा होशापन। बादशाह कहन लगा कि गुरता गद्दी दे लायक नहीं है प्रिथी चंद, ते ना ही गुरता गद्दी वाला इहदे कोल कोई ज्ञान है, ज्ञान तो सखना है, ते कोई इहदा सोहना सुंदर स्वरूप भी नहीं है। बोले ओ जहांगीर ले हो ग्राम में, मैं अपनी दिश ते ए दीन। ते हुण बादशाह कहन लगा, बादशाह ने विचार लिया इहदा खोटापन खुटाई जिहड़ी सी कपट ओ वेख लिया। ते वेख के बादशाह कहन लगा चलो फिर भी गुरु घर दे विचों आया है, गुरु दा सुपुत्र है, भावें है तां इहदे अंदर छल ते कपट भरिया होया, पर गुरु घर दी उच्चता नूं कायम रखण वास्ते बादशाह ने
ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।